السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اب دیکھ رہے ہیں خوفناک دنیا۔ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 9 سال کی تھی۔ ہمارے تھے سے 15 کلومیٹر کے فاصلے یہ میرے چچا کا کنی ایکٹر رقبے پہ پھیلا ایک پرانا فارم ہاؤس تھا جسے میرے دادا نے اپنی جوانی میں انتہائی سستے داموں خریدا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے فارم کا اصل مالک بس اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا اور اس نے نہایت کم قیمت پر ہی فارم کو بیچ دیا۔ اب اس فارم کو چچا جان نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بڑے حصے میں سورج مکھی اور کارن کی فصل اور سبزیاں کاشت کی جاتی تھیں، جبکہ فارم کے وسط میں ایک لکڑی کی باڑ سے پارٹیشن کر کے مویشی پالنے کا احاطہ بنا دیا گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر چچا نے فارم کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھا تھا، بلکہ خود اور اپنے 9 سالہ بیٹے ارہم کے ساتھ فارم پر مصروف رہتے تھے اور خود ہی سارا کام سنبھال رکھا تھا۔ آبادی سے دور پرسکون اور خاموش جگہ تب کی بات ہے جب میں 9 سال پوری فیملی ہر دوسرے ویک ہمارے تھے سے 15 کلومیٹر کے فاصلے یہ میرے چچا کا کنی ایکٹر کے دروازے پھیلا ایک پرانا فارم ہاؤس تھا جسے میرے دادا نے اپنی جوانی میں انتہائی سستے داموں خریدا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے فارم کا اصل مالک بس اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا اور اس نے نہایت کم قیمت پر ہی فارم کو بیچ دیا۔ اب اس فارم کو چچا جان نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بڑے حصے میں سورج مکھی اور کارن کی فصل اور سبزیاں کاشت کی جاتی تھیں، جبکہ فارم کے وسط میں ایک لکڑی کی باڑ سے پارٹیشن کر کے مویشی پالنے کا احاطہ بنا دیا گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر چچا نے فارم کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھا تھا، بلکہ خود اور اپنے 9 سالہ بیٹے ارہم کے ساتھ فارم پر مصروف رہتے تھے اور خود ہی سارا کام سنبھال رکھا تھا۔ آبادی سے دور پرسکون اور خاموش جگہ تھی۔ ہم یعنی پوری فیملی ہر دوسرے ویک اینڈ پہ چچا جان کے ہاں جاتے۔ ان کا گھر فارم ہاؤس کے دروازے کے عین باہر دائیں جانب کو تھا۔ بھلا اتنی خوبصورت جگہ کو کوئی کیوں چھپا کے رکھنا چاہے گا؟ میں نے سورج مکھی کی فصل کے بیچوں بیچ بنی پگڈنڈی پر آگے بڑھتے ہوئے سوچا۔ فارم پر ایک گہری خاموشی طاری تھی جس میں محض وقتا فوقتا پرندوں کی چہچہاہٹ ہی سنائی دیتی تھی۔ سورج مکھی کا کھیت ختم ہوتے ہی سبزیوں کی کیاریاں شروع ہو گئیں جو 3 فرلانگ تک پھیلی ہوئی تھیں، اور ان کے پار لکڑی کے تختوں سے بنا ایک احاطہ نظر آ رہا تھا جس میں لکڑی کے ہی بنے 2 چھوٹے اور ایک بڑا ہٹ دور سے ہی پرانے اور بوسیدہ لگ رہے تھے۔ سبزیوں کی کیاریوں کے اندر سے گھومتی پھرتی میں احاطے کے چوبی دروازے پر پہنچ گئی۔ اس پر کوئی کنڈی لاک نہیں تھا اور دھکیلنے پر آسانی سے کھل گیا۔ احاطے میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا۔ ایسے لگا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو۔ میں نے آس پاس چاروں طرف نظریں دوڑائیں مگر احاطہ بالکل خالی تھا۔ وہاں انسان تو کیا کوئی مویشی بھی اس وقت موجود نہ تھا۔ یقیناً سب جانوروں کو اس وقت احاطے کی پشت پہ چرنے کے لیے چھوڑا گیا ہوگا، میں نے سوچا۔ سامنے موجود سب سے بڑے ہٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کمرے میں جانوروں کے لیے سردیوں میں کھلانے کے لیے بھوسا اکٹھا کیا گیا تھا، اور بھوسے کو ایک بہت بڑے ڈھیر کی صورت میں کمرے کے وسط میں رکھ کر اسے ترپالوں سے مکمل ڈھک دیا گیا تھا۔ یہ ڈھیر کافی بلند تھا اور چھت سے تھوڑا ہی نیچا تھا۔ اسی وقت مجھے نہ جانے کیا سوجھی کہ میں نے اس ڈھیر پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں اس کی چوٹی سے چھت کو چھو سکتی ہوں یا نہیں، اور یوں میں نے ایک طرف سے بھوسے کے ڈھیر پہ چڑھنا شروع کر دیا۔
चोटी पे चढ़ के मैंने छत को छुआ ही था कि दाएं जानिब से उभरने वाली कुछ तेज करहा आवाजों से कमरे पर छाई खामोशी टूट गई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जानवर अपने नाखूनों से लकड़ी को कुरेद रहा हो। मैंने तेजी से चेहरा घुमा के इस जानिब देखा तो एक भयानक मंजर मेरी आंखों के सामने था। वो जो कुछ भी था दीवार के एक कोने में सुकड़ा सिमटा दीवार की जानिब मुंह किए अपने दोनों हाथों से दीवार को कुरेद रहा था, और इसी वजह से वो मकरू आवाजें पैदा हो रही थी। वो मखलूक जर्दी माइल खाकी रंग की थी, जिसका जिस्म इंसान की तरह था, मगर जैसे इसके वजूहे में गोश्त का एक रेशा भी न था, बल्कि पहली सी मुर्दा खाल जैसे ढांचे पर ही लपेट दी गई थी। मैं इस जी रीढ़ की हड्डी का एक एक मोहरा देख सकती थी। मंजर इतना मकरू था कि मुझे बेइख्तियार अलिफाबकाई आ गई। उसने अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ा और खौफ से मेरा दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे पसलियां तोड़ते हुए सीना फाड़ के बाहर आ जाएगा। इस चीज की शक्ल ऐसी थी जैसे किसी इंसानी लाश के चेहरे को हथौड़े से पीटा गया हो। मैंने अपने वजूद के एक एक खलिए की ताकत अपनी टांगों में मुज्तमा की और जितना तेजी से मुमकिन था ढेर के मैंने अपने वजूद के एक एक खलिए की ताकत अपनी टांगों में जमा की और जितना तेजी से मुमकिन था ढेर के दूसरी तरफ उतरते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ भागी। मुझे पुश्त पर किसी के हाँफने जैसी आवाजें आईं, जो कि करीब होती जा रही थीं। साफ जाहिर था कि वो जो कुछ भी था मेरा पीछा कर रहा था। मैंने पूरी ताकत सिर्फ करते हुए अपने भागने की रफ्तार को मजीद बढ़ा दिया और चंद लम्हों में ही सब्जियों की क्यारियों को पार करके सूरजमुखी के खेत में दाखिल हो चुकी थी। मुझे अब भी अपनी पुश्त पर हाँफने और गर्रानी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मेरा रुख फार्म हाउस के मरकजी गेट की तरफ था। बस पहुंच गई, पहुंच गई, पहुंच गई, मैंने भागते हुए सोचा। लेकिन जैसे ही मैं सूरजमुखी के खेत से निकली मेरा पैर बुरी तरह से रपटा और मैं मुंह के बिल जमीन पर गिरी और बमुश्किल 3 सेकंड में वो मखलूक मेरे सर पर। मैंने खौफ से आंखें भींच लें। अब गर्रानी की आवाज के साथ इस मखलूक की यख ठंडी सांस मुझे गर्दन की पुश्त पर महसूस हो रही थी। मरकजी गेट बंद था। मुझे अपनी मौत का यकीन हो चुका था। तभी मुझे किसी कुत्ते के बुरी तरह से भौंकने और गर्रानी की आवाज आई और ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने मेरे ऊपर से दूसरी जानिब छलांग लगाई हो। ये चचा जान का कुत्ता सकीटू था जो न जाने किस वक्त फॉर्म में आया था। उसने ही मुझे नामालूम मखलूक के शिकंजे में देखकर इस पर छलांग लगाई थी और इसे रगीदत्ता हुआ सूरजमुखी के खेत के अंदर जा गिरा था। कितने के बुरी तरह से गर्रानी की आवाजों के साथ फसल ऐसे हल रही थी जैसे दो दरिंदे आपस में टकरा गए हों। मैं हिम्मत करके उठी और बेतहाशा मरकजी गेट की तरफ भागी। मैं गेट पर पहुंची ही थी कि गेट खुल गया। चा और पापा फॉर्म में दाखिल हुए जो शायद मुझे गायब देखकर और फिर कितने के गर्रानी की आवाजें सुनकर फार्म हाउस की तरफ भागे थी। मैं बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी और मुझ पे सख्ता तारी था। मुझे फौरन वापस चाचू के घर में पहुंचा दिया गया, जहां मेरे होश बहाल होने में काफी देर लग गई। तब मेरे करीब थे और सभी मेरी हालत पर परेशान दिखाई दे रहे थे। मेरी हालत कदरे संभली तो पापा ने मुझसे पूछने की कोशिश की कि फॉर्म में मुझ पर क्या उफ्ताद आन पड़ी थी। मैं चंद लम्हे खामोश रही, फिर हिम्मत करके बोलना शुरू किया और सबको बताने की कोशिश की कि फॉर्म में मुझ पर किसी अनजान मखलूक ने हमला किया था
और मेरा ताक़ुब किया। वो मेरे सर पर पहुंच चुकी थी जब सकीतू ने इस पर हमला करके इससे मेरी जान बचाई, इससे पहले कि मैं कुछ और बोलती और इस मखलूक का हुलिया बयान करती। चचा जान ने मेरी बात काट दी और बोले, अरे बेटा, यकीनन वो कोई लूमड़ होगा। इस इलाके में लूमड़ अक्सर नजर आ जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, आज तक लूमड़ के हमले से किसी इंसान की मौत नहीं हुई। इस इलाके में मैं जानती थी कि वो लूमड़ नहीं था बल्कि एक खौफनाक इफरीत था, मगर चाचू की इस बात पर मैं खामोश हो गई और हम घर वापसी के लिए निकल पड़े। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो मेरे दिल से रहा सहा खौफ भी जाता रहा और ये सब महज एक डरावने ख्वाब जैसा लगने लगा। और चंद दिन में मैं वाकई ये सोने लगी कि कहीं वाक़ता ऐसे तो नहीं कि वो मखलूक दरअसल एक लूमड़ या कोई और मकामी जानवर हो जिसे मैं तन्हाई, खौफ और कमरे में रोशनी कम होने की वजह से डरवाना इफरीत समझ बैठी हूँ। यूं ही चंद हफ्तों में बात आई गई हो गई। एक माह गुजर गया और मैं इस वाक़ये को तकरीबन फरामोश ही कर चुकी थी कि घर में फिर से सबका चचा है हाँ जाने का प्रोग्राम बनने लगा। एक लम्हे तो मैं बुरी तरह से जेजे लेकिन फिर ये सोचते हुए साथ जाने को तैयार हो गई कि अब भूलकर भी फॉर्म का रुख नहीं करूंगी। उस तरह हम चाचू के घर की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी से उतरने के बाद मैंने फार्म हाउस की तरफ एक नज़र देखा भी नहीं और उससे नज़रें चुराते हुए सबके साथ चाचू के घर पहुंच गए। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, गोया वो वाकया सबको ही भूल चुका हो। मैं चचा के घर सबसे मिलने के बाद किचन में चली गई जहां पिच कलंग में मसरूफ थीं। उन्होंने हसब मामूल मुझे प्यार किया और हाल अहवाल पूछा। बेटा ऊपर जाओ और स्टोर रूम से इसमें चीनी भर लाओ प्लीज, आंटी ने मुझे एक जार पकड़ाते हुए कहा। मैं जार पकड़े 24 सीढ़ियां चढ़ते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंची। स्टोर रूम गैलरी के इख्तिताम पर था। गैलरी में नीम तारीकी का समा था। मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। चीनी से भरी पैटी सामने ही पड़ी थी। मैं इसे खोल के जार में चीनी भरने लगी। वही लम्हा था जब मैंने कमरे में ऐसी आवाज़ें सुने जैसे लकड़ी की किसी चीज़ को नाखूनों से कुरेदा जा रहा हो, और मेरी नज़रें खुद बखुद कमरे के 24 शेड की तरफ घूम गईं जिस पे वही इफरीत बैठकर पुश्त मेरी जानिब कैसे दीवार को खुरच रहा था। मेरे हाथ से जार छूटकर जमीन पे जा गिरा। नहीं, फिर से नहीं। मैंने छीने की कोशिश की लेकिन मेरी आवाज ने मेरा ना दिया। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म में जान ना रही हो। मैंने पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा तो मुझे लगा जैसे मेरे कदम मन मन के हो चुके हों। तभी मैंने उसे शेड से उतरते देखा। मैंने जिस्म का पूरा जोर सिर्फ करते हुए खुद को दरवाजे की तरफ धकेला और दरवाजे से टकराई। दरवाज़ा खुल गया और मैं ऐसे ज़मीन पे गिर गई कि मेरा आधा जिस्म कमरे में और आधा गैलरी में था। तभी मुझे किसी ने बाजू से पकड़ के झटके से अपनी तरफ खींच लिया और मेरे हल्क से चीख निकल गई। बेटा घबराओ नहीं, ये मैं हूँ। मेरे कानों में चाचू की आवाज़ पड़ी और मेरी जान में जान आई। चाचू न जाने कब ऊपर आए थे और उन्होंने मुझे दरवाजे से बाहर करते देखा तो बाजू से पकड़ के बाहर अपनी तरफ खींच लिया। अब चाचू की नज़रें स्टोर के अंदर का जायजा लिया रही थीं और उनके चेहरे पे खौफ व फिक्र के मिले जले तासुरात थे। बेटा, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चचा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे की जानिब ले जाते कहा और मैं डरी सहमी उनके साथ चल पड़ी।
चाचू मुझे साथ लेते हुए वापस पहली मंजिल पर आए और बाहर सहन की तरफ चल दिए। बेटा, भले ही आप अभी बहुत छोटी हो, लेकिन जो कुछ मैं बता रहा हूं उसे गौर से सुनना और ज़हन नशीन कर लेना, क्योंकि मामला तुम्हारी जिंदगी और सलामती का है। आज से 50 साल पहले ये फार्म हाउस तुम्हारे दादा ने एक अजनबी शख्स से खरीदा था। वो शख्स इतनी कम कीमत में फार्म हाउस फरोख्त कर रहा था कि इतनी कीमत में इस दौर में बमुश्किल 10 मरले का एक घर ही खरीदा जा सकता था, और उसकी वजह हमें कई साल बाद समझ आए। जैसे ही मैं 17 साल का हुआ, बाबा ने मुझे भी अपने साथ फार्म के काम पे लगा दिया। इस फार्म पे मुझे हमेशा एक अजीब सा एहसास रहता है, ऐसे जैसे मुझे हर वक्त कोई देख रहा हो। किसी कोने खुदे, किसी झाड़ी, किसी बाड़ से हर वक्त मुझ देखे जाने का एहसास होता था। और साथ ही अक्सर मुझे फार्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी आवाज़ें सुनाई देती जैसे लकड़ी को किसी नोकीली चीज़ से कुरेदा जा रहा हो। शुरू में तो मैं यही समझता रहा कि ये आवाज़ें चूहों, अच्छे छेवंदर के लकड़ी के तख्तों पर भागने दौड़ने की आवाज़ें हैं। लेकिन गुज़रते दिनों के साथ उनसे आवाज़ों में भी शिद्दत आती जा रही थी, और इस अजीब व गरीब बेमानी एहसास में भी। पूरा दिन फार्म पे काम करते वक्त मुझे इन आवाज़ों बुरी तरह से कोफ्त होती और काम में खलल आता था। मैंने बाबा से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई आवाज़ सुनाई देने से मुयस्सर इनकार कर दिया और कहा कि ऐसी आवाज़ें चूहों और गुलहरियों की ही हो सकती। यकीनन सब जानवरों को इस वक्त इहाते की पुश्त पे चरने के लिए छोड़ा गया होगा। मैंने सोचा। सामने मौजूद सबसे बड़े हिट का दरवाज़ा खुला था। इस कमरे में जानवरों के लिए सर्दियों में खुलाने के लिए भूसा इकट्ठा किया गया था, और भूसे को एक बहुत बड़े ढेर की सूरत में कमरे के वस्त में रखकर उसे तरपालों से मुकम्मल ढक दिया गया था। ये ढेर काफी बुलंद था और छत से थोड़ा ही नीचा था। इसी वक्त मुझे न जाने क्या सूझी कि मैंने इस ढेर पर चढ़ने का फैसला किया। मैं ये देखना चाहती थी कि मैं उसकी चोटी से छत को छू सकती हूँ या नहीं, और यूं मैंने एक तरफ से भूसे के ढेर पे चढ़ना शुरू कर दिया। चोटी पे चढ़ के मैंने छत को छुआ ही था कि दाएं जानिब से उभरने वाली कुछ तेज करहा आवाज़ों से कमरे पर छाई खामोशी टूट गई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जानवर अपने नाखूनों से लकड़ी को कुरेद रहा हो। मैंने तेजी से चेहरा घुमा के इस जानिब देखा तो एक साथ ही मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगीं कि जैसे कोई खिड़की के शीशे पर उंगली से दस्तक दे रहा हो। मैंने चाचू की हिदायत पर अमल करते हुए सख्ती से आंखें भींच ले और कंबल को खूब अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट लिया और आयात का वर्द करते हुए सोने की कोशिश करने लगी। काफी देर तक वो मकरू आवाज़ें सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। ख्वाब में मैंने देखा कि मैं पत्थरों से भरी एक नीम तारीक वादी में नंगे पांव भाग रही हूं, और वही खूनी इफरीत मेरा पीछा कर रही है। नोकीले पत्थर लगने से मेरे पांव जख्मी हो रहे होते हैं, और उनसे खून बहता हुआ जमीन पर मेरे कदमों के निशान बना रहा होता है। अचानक एक पत्थर से ठोकर लगती है और मैं मुंह के बिल गिर जाती हूँ। आन के आन में वो इफरीत मेरे सर पर पहुंच जाती है और अपने नोकीले पंजों से मेरे जिस्म का एक एक उज़्व उधेड़ के रख देती है। ये ख्वाब देख के खौफ के मारे मेरी आँख खिल गई। मैं पसीने में शराबूर थी और मेरा जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। मुझे ये बात घर में सबसे छुपा कर पी रखनी होगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो इफरीत मेरे घर में किसी और पर भी मुसल्लत हो जाए। मैंने जागते ही सोचा।
इसके बाद से ये मामूल बनता चला गया। मुझे घर, स्कूल, कार गरज हर जगह इस बिला की खुरचने की आवाज़ सुनाई देती और चंद मर्तबा तो उसकी झलक भी दिखाई दी, लेकिन मैंने हर मर्तबा दिल पे जब्र करके इसे नज़र अंदाज करना जारी रखा। ताहम इससे मेरी सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब हुए। मेरी नींद और भूख उड़ चुकी थी, रंगत जर्द पड़ गई और आंखों के गिर्द सियाह हल्के बन गए। मैं स्कूल के काम में कमज़ोर होना शुरू हो गई और मेरे ग्रेड्स में भी कमी आने लगी। इस सब सूरत हाल पर मेरे वालिदैन बहुत परेशान थे और एक के बाद दीगरे कई डॉक्टर्स और पैलिस्टिस्ट से मेरा मुआयना भी करवाया गया, ताहम किसी भी मर्ज की मशख़सियत पाई। बल्कि मुझे तो डॉक्टर के क्लिनिक और हॉस्पिटल्स में भी वही मनहूस खुरचन की आवाज़ ही सुनाई देती। 3 माह में मेरी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि स्कूल इंतज़ामिया ने मुसलसल बुरी कारकर्दगी दिखाने और सेहत की खराबी की वजह से मुझे मज़ीद पढ़ाने से माज़रत कर ली और स्कूल से मेरा नाम खारिज कर दिया गया। दूसरी तरफ अब मैं इतनी कमज़ोर होती जा रही थी कि मुझे हॉस्पिटलाइज किए बगैर और कोई चारा न था, और यूं मुझे शहर के एक मियारी और अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। मेरे पूरे ख़ानदान पर मेरी वजह से परेशानी और तकलीफ़ का दौर शुरू हो चुका था और मुझे इस बात की भी अलग शर्मिंदगी थी। लेकिन फिर एक दिन मुझे वो आवाज़ न सुनाई दी। पूरे 24 घंटे गुजर गए और वो मनहूस आवाज़ न सुनाई दी फिर से। क्या मेरी तकलीफ़ के इख्तिताम का वक्त आन पहुंचा है? क्या वो इफ़रीत मेरा पीछा छोड़ चुकी है, या फिर मैं अब मौत के इतने करीब हूं कि मज़ीद कोई खौफ मुझे तकलीफ़ नहीं दे पा रहा? अगले रोज़ मैंने सोचा, लेकिन 3 दिन गुजर गए और मुझे फिर वो आवाज़ दोबारा न सुनाई दी। 10 साल बाद इस वाक़या को 10 साल का तवील अरसा बीत चुका है, और इस दिन के बाद न तो मुझे भी ऐसी कोई आवाज़ सुनाई दी और न ही कभी इस मकरू इफ़रीत से सामना हुआ। जिस दिन से मुझे वो आवाज़ें आना बंद हुई थीं, इसी दिन से मेरी तबीयत भी संभलना शुरू हो गई थी, और मज़ीद 1 हफ़्ता हॉस्पिटल में गुजारने के बाद मुझे सेहत बेहतर हो जाने पर डिस्चार्ज कर दिया गया था। इसके बाद मैं कभी चाचू के यहाँ नहीं गई, और तो और मैंने दोबारा इस स्कूल में भी एडमिशन लेने की कोशिश न की जिससे मेरी तल्ख़ यादें वाबस्ता थीं। मुझे इससे भी अच्छे और मियारी स्कूल में बआसानी एडमिशन मिल गया था, और अब 10 साल बाद मैं एक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ कर रही थी। चाचू ने 1 साल कबल अपना फार्म और घर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को अच्छे दामों फरोख्त कर दिया, जिन्होंने फार्म को मिसमार करके फार्म और उसके अर्द गिर्द की वसी ज़मीन पर एक हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद रख दी। चाचू ने और हमारे ही शहर में एक घर और चंद दुकानें खरीद ली थीं। बकौल उनके इस उम्र में मुझसे अब ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं होता। मुझे इस कंपनी, इसके कारकुनान और इस हाउसिंग सोसाइटी में कुछ अरसे बाद मकान खरीदने वालों से वली हमदर्दी है, क्योंकि वो सब नहीं जानते कि बहुत जल्द उनके साथ क्या कुछ होने जा रहा है।